Yeah, so hi everybody. A very good evening to one and all, and a very warm welcome to today's session. आज हम strategy session करने जा रहे हैं JIP MAT की, which is again one of the IPM examinations that happens for 2 IIMs. Although there are certain institutions जो इस score को इसके JIP MAT के score को accept करते हैं, but it happens for 2 IIMs predominantly. That is IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. So I welcome you all once again. And those who are yet to join, please join in ASAP. In the meanwhile, I welcome my guest. Welcome Praveen sir. Welcome Girish sir. आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, आज के स्टडी सेशन में. Welcome Girish sir. Welcome to you as well. Yeah, thank you so much sir. Thank you so much. And I'm sure that students must be waiting. They are actually waiting for this session to just gain some knowledge that what is the minimum marks or what is the marks actually we should score in the different sections of QA, English and logical reasoning, so that we can get into IIM Bodh Gaya and IIM Jammu, right? तो क्योंकि ये दो IIMs हैं, लास्ट ईयर से शुरू हुआ है सर, और आने वाले समय में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. इनफैक्ट आई नो दैट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार people are more aware about this. People are actually applying for JIP MAT in large numbers, and they are actually very optimistic and positive as well. For these two new IIMs, right? So, yeah, Shirisa, hi. Yeah, hi everybody. So let me start the session for JIP MAT. Yeah, excuse me. Okay, so I'm sharing a presentation with you, and let's get into the key features of JIP MAT. I hope this presentation is visible to you, Praveen sir and Girish sir. Not for the while, sir. Yes, now. Yes, it is. It is visible, right? So first of all, let me get into the key features of JIP MAT. So first of all, it is a 5-year integrated program in management. आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश में 5 ऐसे IIMs हैं जो 5-year IPM program offer करते हैं. IIM Indore, IIM Rohtak, IIM Ranchi, IIM Jammu, and IIM Bodh Gaya. So this predominantly this examination JIP MAT happens for IIM Bodh Gaya and IIM Jammu, right? It started last year in the year 2021. It is conducted by National Testing Agency. Of course, the National Testing Agency is one of the organizations that conducts most exams conducted by Government of India, right? Or the government or the various autonomous institutions. Predominantly, this examination JIP MAT happens for IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि बच्चे कहते हैं कि सर IIM इंदौर में तो सेक्शनल टाइम लिमिट भी होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है. IIM रोहतक में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता. JIP MAT का क्या हिसाब किताब है सर? क्या सेक्शनल टाइम लिमिट होता है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. अगर आपने इंग्लिश का पेपर 10 मिनट पहले सॉल्व कर लिया है तो उस 10 मिनट में आप मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरे सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, बट देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ. मिनिमम कट ऑफ हर सेक्शन के लिए ये डिफाइंड है. IIM Jammu has a different set of sectional cutoff, and IIM Bodh Gaya has a different set of sectional cutoff. दोनों institutions, they are independent in deciding the sectional cutoff of JIP MAT examination. The most I would say one of the most pleasant part for different student is, for various student, is that there is no interview, right? यहाँ पे जो purely आपका जो selection होगा वो आपको written test के basis पे होगा. In fact, criteria for selection is different for these two colleges. IIM Jammu has a different set of criteria for overall criteria for selection, and IIM Bodh Gaya has a different set of criteria, right? But in this JIP MAT examination, no calculator is allowed. आपको पहले से मैंने बताया हुआ है कि IIM इंदौर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, IPM इंदौर में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, बट IPM रोहतक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड, एंड द सेम गोज विद JIP MAT. JIP MAT में देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड. बट आपको मैं ये बता दूं कि आप जनरली कैलकुलेटर की जरूरत आपको या तो मैथ्स में पड़ता है या तो LRDI में पड़ता है. मैथ्स में या LRDI में कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो, एंड दैट्स द रीजन no calculator is allowed. You don't require calculator at all.
let me tell you, these questions are very direct and basic. It is easiest of all the IPM entrance examination. In fact, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि it is easier than IIM Rohtak as well, right? IPM Indore is the toughest. उसके बाद IIM Rohtak आता है, and people believe that IPM JIPMAT is the easiest of all the IPMs. Probably the one reason could be that last year 2021 में पहली बार ये exam हुआ था. So we are expecting that this year the level of toughness might increase, it might vary, right? वो पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि पॉपुलैरिटी थोड़ी बड़ी है IIM जम्मू के लिए और IIM बोधगया के लिए. So popularity बढ़ी है तो more number of applicants could be there. So this is the second year of examination. So the toughness level of paper, level of difficulty might increase a bit. But as of now, last year के experience से हम ये बता सकते हैं it is easier than IIM Rohtak, right? 60 seats each for IIM बोधगया and IIM जम्मू, right? तो टोटल 120 सीट से दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिला के 60 फॉर बोधगया, 60 फॉर जम्मू, राइट? एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी को वेटेज दिया गया है. सो 10% जेंडर डाइवर्सिटी और 10 सीट्स IIM बोधगया में रिजर्व्ड है. जेंडर डाइवर्सिटी मींस फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन, राइट? कट ऑफ हाई, इसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो, बिकॉज सीट्स आर लेस एंड देयर इज अ वेटेज गिवन टू जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल, राइट? सो जब सीट्स बहुत कम हो जाते हैं और एप्लीकेंट्स अगर ठीक ठाक हो, सीट्स अगर टोटल देखिए 60 + 60 120 है, एप्लीकेंट्स अगर 10,000 भी हो जाए तो ऑब्वियसली द कट ऑफ विल बी हाई बिकॉज सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर, सो कट ऑफ automatically increases, right? Now what are the institutions that will accept the JIPMAT score? It is IIM Bodhgaya, IIM Jammu and Department of Management Studies Nasir University of Law, that is in Hyderabad. ये तीनों colleges, institutions JIPMAT के score को accept करते हैं. As you know that Sunday को, coming Sunday 3rd of July को आप ये examination दे रहे होंगे, right? And timing for examination is 3 PM to 5:30 PM. Means 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 hours. That really means 150 minutes of time you have. And this is something which makes this examination a bit easy because you have more time in this examination. IIM Rohtak 2 hours paper. IIM Indore 2 hours paper. JIPMAT 2.5 hour paper, right? और मैं questions की अगर बात करूं तो basically you have 100 questions. So 100 questions के लिए आपको 150 minutes का time मिल रहा है. So that really means per question you have more time to solve. That is the reason people actually attempt more questions, and the cutoff that actually might increase the cutoff. It is a purely computer based examination which is conducted by National Testing Agency. Now let's look at the number of questions. सबसे पहले हमने देखा we have 150 minutes of time, but look at the total number of questions, that is 100, right? 33 question on mathematics, that is quantitative aptitude, and all the questions are MCQ based. जैसे IIM इंदौर के एग्जामिनेशन में कुछ शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं जिसमें आपको आंसर टाइप करना पड़ता है, राइट? यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर नहीं. All the questions are MCQ based. Mathematics 33 questions, data interpretation, logical reasoning 33 questions, verbal ability and reading comprehension 34 questions. अब आपको अच्छे से पता है कि LR and DI is closer to mathematics, right? हालांकि LR and DI के कुछ पार्ट्स इंग्लिश में भी कवर होते हैं, राइट? लेकिन LR and DI is closer to mathematics. अब मैथमेटिक्स पे आपने 66 क्वेश्चंस पूछ दिए LR and DI मिला करके, तो ऑब्वियसली इंग्लिश का शेयर 34 तो बनना ही था, राइट? सो टोटल 33 and 34 question, 100 questions. Every question comprises 4 marks. So that makes mathematics section 132 marks, right? 132 marks for LRDI and 136 marks for the verbal ability and reading comprehension part, right? So total 400 marks, 100 questions. ठीक है? There is a negative marking as well. For every correct answer 4 marks, for every incorrect answer there is -1, -1 marks, right? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, किसी भी सेक्शन के लिए टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है. There is no sectional time limit. आप किसी भी ऑर्डर में आप जैसे चाहे वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपका DI का सेक्शन पहले खत्म हो गया, मान लीजिए 20 मिनट पे खत्म हो गया, you can directly go to the mathematics part or you can directly go to the English part. There is no sectional time limit defined in this, but there is a sectional cutoff. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि sectional cutoff depends upon the college, right? IIM Jammu has its own sectional cutoff, IIM Bodhgaya has its own sectional cutoff. अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर IIM Jammu की बात करूँ, IIM Jammu 60% वेटेज JIPMAT के रिटन स्कोर को देगा. इनफैक्ट आपके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसका 60% निकाला जाएगा.
Suppose out of 400 marks you just managed to got 230 marks, तो इसका 60% वेटेज दिया जाएगा। अगर 400 में आपके अगर 260 आ गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका 60% वेटेज, इट विल बी अ लार्जर नंबर, इट विल बी ग्रेटर नंबर। अगर 400 में से आपके 290 आ गए, इट विल बी इवन अ ग्रेटर नंबर, बिकॉज इसका 60% और भी बढ़ के नजर आएगा। और 400 में से अगर आपके 320 आ गए तो कहना ही क्या है, इट विल बी इवन अ गुड नंबर, इट विल बी अ ग्रेट नंबर, राइट, एज at least pretty much greater as compared to 230 or 260, because 60% of 320 is pretty larger than 60% of 230 or 260, right? So आप जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आपका वेटेज यहाँ पे ऐड होगा 60%। 10th के मार्क्स को 15% वेटेज दिया जाएगा, 12th के मार्क्स को 15% वेटेज दिया जाएगा, एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 10% वेटेज। एंड जेंडर डाइवर्सिटी मींस इफ यू आर अ मेल यू डोंट हैव एनी बेनिफिट, राइट, बट इफ यू आर अ फीमेल आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, बिकॉज even the IIMs, they want to make the crowd more homogeneous, and they want the participation of more and more girls in the management colleges, right? So that's the reason they have decided to give 10% weightage or 10 marks extra to the girls, right, in the name of gender diversity. अब देखिए मैंने बता रहा था कि दोनों कॉलेजेस के अपने अपने सेक्शनल कट ऑफ है। तो आई एम जम्मू ने ये डिसाइड किया है कि भाई मैथ्स में, डीआई में और इंग्लिश में आउट ऑफ 132, मैथ्स में आउट ऑफ 132 डीआई में एंड आउट ऑफ 136 इंग्लिश में, राइट, आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं मिनिमम 50 मार्क्स का ये नहीं कि आप 51 या 52 मार्क्स ले आकर के खुश हो जाए, नो। आप अगर सपोज करो कट ऑफ पे ही खुश है तो आपके 150 मार्क्स आए आउट ऑफ 400, इसका 60% ही तो वेटेज होगा। और किसी दूसरे बच्चे ने 400 में से यहाँ पे भी 100 नंबर लेकर के आया, यहाँ पे भी 100 नंबर लेकर के आया और यहाँ पे भी 100 मार्क्स लेकर के आया, तो उसके 300 नंबर हो गए ना, इसका भी तो 60% वेटेज निकाला जाएगा। और ऑब्वियसली दूसरे बच्चे का जिसका 300 मार्क्स है आउट ऑफ 400, उसका जो 60% जो वेटेज दिया गया उसका मार्क्स ज्यादा निकल करके आएगा एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिसके मार्क्स सिर्फ 150 है, एंड द वन हु इज ओनली बेयरली एबल टू क्लियर द कट ऑफ। सो दैट रियली मीन्स 50 is the cutoff. That does not mean कि आपको 50 पे रुक जाना है, नो, you have to maximize your marks in every section, but minimum 50 मार्क्स लेकर के आना है हर सेक्शन में। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे 100 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, यहाँ 140 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, बट यहाँ पे अगर आप 48 पे स्टक हो जाते हो तो बेसिकली आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका 60% निकाला ही नहीं जाएगा, राइट, बिकॉज यू डू नॉट क्लियर द सेक्शन कट ऑफ। सो ठीक उसी तरह से दूसरे कैटेगरीज के लिए ही, ईडब्ल्यूएस के लिए है, नॉन क्रिमिनल और ओबीसी के लिए, एससी है, एसटी के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, राइट। नाउ बट व्हेन वी टॉक अबाउट आई एम बोध गया सेज कि भाई हम 10th और 12th को की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। वो कहता आई एम बोध गया कि भाई हमारे पास 60 सीट्स है, ठीक है, जिसमें 50 सीट्स आर जेंडर न्यूट्रल, this is open for all, and there will be 10 supernumerary seats for girls. So the girls के लिए there are extra 10 seats reserved, extra in the sense 60 में से ही 10 seats reserved for girls, so 50 will be the open seat for gender neutral seats. यहाँ पे 10th और 12th मार्क्स की कोई बात नहीं की गई है आई एम बोध गया में। और आई एम बोध गया सिर्फ एक चीज कहता है कि भाई आपको इंडिविजुअल सेक्शंस में मिनिमम 30 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करना है। यहाँ पे बात हो रही है परसेंटाइल की, सो 30 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करना है, राइट। Obviously, if you are in 35 percentile आया, 36 percentile आया, तो आपके मार्क्स का कुछ वेटेज निकाला जाएगा, it will be weightage will be given. But if you are having more percentile, मान लीजिए आप 97 percentile 98 percentile पे हैं, तो आपके obviously आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, because purely the admission to IIM बोधगया is based on your written marks. आपके रिटन में कितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे है आपका सिलेक्शन, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना आई एम बोधगया में इंटरव्यू होता है, ना आई एम जम्मू में इंटरव्यू होता है, राइट। और आई एम जम्मू तो चलिए 10th और 12th के मार्क्स को कुछ वेटेज दे भी रहा है, बट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ आई एम बोधगया देयर इज एज ऑफ नाउ देयर इज नो वेटेज फॉर 10th and 12th, राइट। योर एंटायर सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर whatever you do in the entrance examination, right. Now coming to the QA topic, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 33 क्वेश्चंस थे और 33 क्वेश्चंस में अरिथमेटिक रूल्ड, राइट, रूल चला अरिथमेटिक का। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस 15 to 16 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम अरिथमेटिक, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 2 क्वेश्चंस परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, एवरेजेस से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन 1, TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन,
ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चंस, बट द ओवरऑल थिंग इज दैट ऑल इज बेसिक मैथ्स। और ये कौन से क्लास का? 10th का बेसिक मैथ्स। क्वेश्चंस वर वेरी इजी। अब देखिए, but 33 में से almost half of the paper was composed of it was comprises of arithmetic only. So these were the topics जो covered थे, and topic wise detail आपको दिया गया है, right now. So that clearly means एक जो सबसे अच्छी बात है मैं बताऊं, आप 2nd of July you are appearing for IPM Indore, right, and 3rd of July you are appearing for JIPMAT. अगर आप IPM इंदौर दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका JIP मैट की तैयारी हो जा रही है बाय डिफॉल्ट, राइट, बिकॉज JIP मैट पेपर इज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, द पेपर इज प्रीटी इजी एज कंपेयर टू IPM इंदौर एंड ऑल। तो आप में से जितने लोगों ने JIP मैट का पेपर फिल किया है और इंदौर का भी एग्जाम लिख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिपरेशन हो ही जा रही है। लेकिन आपने इंदौर का पेपर अगर फिल नहीं किया है फॉर्म, आप सिर्फ JIP मैट दे रहे हैं, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू रिवाइज योर स्टफ्स। आप सिर्फ रिवाइज करें, क्वेश्चंस बेसिक फॉर्मेट में आते हैं। And some of the suggestions to you is that this year cutoff may be high as it is the 2nd year of the examination. हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ आए as compared to last year, because last year it was the first year of examination. The best part is that enough time is available, 150 minutes for 100 questions. और यही रीजन है कि इस पर्टिकुलर पेपर में you will be surprised to know that out of 100 questions last year, right, people attempted 85 questions easily. 100 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस लोगों ने आसानी से अटेम्प्ट किया, इजीली अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि दो चीजें थी, एक तो पेपर भी आसान था, क्वेश्चंस बेसिक थे, और दूसरा टाइम काफी ज्यादा था। 100 क्वेश्चंस 150 मिनट्स, राइट। ये सबसे अच्छी चीज है इस एग्जामिनेशन की, विच अलाउ स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, राइट, सो अकॉर्डिंग टू योर विशेस यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। क्वेश्चंस आर बेसिक इन नेचर एंड इट्स ऑल बेसिक मैथ्स फ्रॉम क्लास 10th लेवल। क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई नॉन मैथ्स का भी स्टूडेंट है, अगर उसने 1-2 महीने की अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो बेसिकली वो बहुत ही मैनेजेबल पाएगा क्वेश्चन पेपर को। ही विल बी एबल टू मैनेज एंड ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस, अगर उसने 1-2 महीने की तैयारी की है, भले ही वो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हो। रिमेंबर यू हैव टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स विद इन दोस 2.5 आवर्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मैथ्स के सेक्शन में कि क्वेश्चन ईजी है और टाइम भी ज्यादा है। यू हैव मोर टाइम and easy questions. That clearly means that number of attempts बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं, और इस एग्जामिनेशन में attempt के साथ साथ accuracy matters a lot. You have to have great deal of accuracy, right? And that's the reason I always say that speed along with accuracy will be the key, because attempt सभी करेंगे। Out of 100 questions ये मान करके चलिए कि 80+ सारे बच्चे attempt करेंगे। questions होते ही ऐसे हैं और टाइम भी आपके पास। सो बेसिकली आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उसमें कम से कम 90% एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अटेम्प्ट तो कर दिया 90, बट पता चला कि उसमें 40 गलत है, कोई फायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू हैव ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी। फोकस ऑन अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस along with more accuracy, right? 90% एक्यूरेसी मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज पेपर बहुत आसान है। कवर ऑल द टॉपिक्स एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस सारे टॉपिक से पूछे गए हैं। If you see these topics, सारे ही टॉपिक्स सब कवर किए गए हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चंस ना पूछे गए। So you have to cover all the topics, right, and focus on your strong areas in mathematics. And last but not least, be confident of yourself. आप ये मान के चलिए कि भाई आपने तैयारी की है, प्रैक्टिस किया है, मॉक्स दिया है, तो आपसे एग्जाम क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कोई इंटरव्यू नहीं है, आप रिटन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। You will be getting call on the basis of written examination for IIM बोधगया और IIM जम्मू के लिए आपने 10th 12th में अच्छा स्कोर किया और रिटन में अच्छा स्कोर किया है, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी गेटिंग अ कॉल इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड सो फार एज द QA is concerned, maths is concerned, right? Now for LR, logical reasoning, I would like to invite and I would like to request Girish sir to take you through the LR section. Girish sir, it's all yours. Hi everyone. So LR DI part, right? So first we'll discuss कि इसकी डिफिकल्टी क्या होने वाली है LR DI की, right? So अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमारी LR DI वाले पार्ट की डिफिकल्टी क्या होने वाली, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो डिफिकल्टी you can expect difficulty easy to moderate,
easy to moderate, right? So make sure, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा या ड्यूरिंग यूट्यूब लाइव भी हमने बहुत बार जिपमैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब लाइव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो ड्यूरिंग दोस क्लासेस हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए. सो देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक्स लाइक सीरीज, सीक्वेंस. सो वो क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने वाले. मैंने आई गेस कि पहले भी आपको एग्जांपल दिया, लाइक लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट. उसमें आपको कुछ डेट्स ऑप्शंस में गिवन थे, राइट, लाइक दिस, लाइक December 2021, then you have given Feb 2021, next one is March 2021 and November 2021. So अगर आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, विल डिस्कस, ठीक है, विल डिस्कस. सो अब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डिस्कस किया जाए, बिकॉज सिंस वहां पर आपके पास कैलेंडर नहीं है, राइट. व्हाट वाज द लॉजिक कि फर्स्ट डे ऑफ फैब वाज मंडे, first day of March 2021 was Monday, and first day of November 2021 was also Monday, and this day was Wednesday. So मुझे नहीं लगता कि ये किसी के भी माइंड में ड्यूरिंग जो एग्जाम का प्रेशर है वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस क्लिक करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि सारे क्वेश्चन इजी नहीं होने वाले, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलने वाले. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट लॉजिक डेफिनेटली ये एग्जाम में तो क्लिक नहीं करने वाला है, राइट. Same with coding, decoding में you'll find some pattern, and cubes and cuboid you'll find some questions जो बहुत ज्यादा tricky होने वाले हैं, right. So जैसे during रोहतक भी मैंने आपको बताया था, you can expect some questions जिनका level थोड़ा सा difficult होगा, right. So make sure हमें सबसे पहले 33 में से कौन से बेस्ट क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करना. स्कैनिंग जो बार बार सारे फैकल्टीज आपको बोलते हैं, आपको पेपर की स्कैनिंग कर रही है. सी यू विल फाइंड ओनली 3 to 4 such questions in whole paper, right. Means questions will be doable. That means आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो 28 to 29 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, कौन से वो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ने, जिनको अटेम्प्ट नहीं करना, जिनमें टाइम खराब नहीं करना, राइट. सो पहले बात करते हैं पेपर की ओवरऑल डिफिकल्टी, कैसे किस लेवल पे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, राइट. सो टोटल 33 क्वेश्चंस ऑफ LR and DI वी हैव, ठीक है. आउट ऑफ 33 you'll find 40 to 50% questions easy, doable, easily doable. आपको लगेगा ये तो एकदम से मैं क्लिक कर लूंगा within a minute, right, will able to solve. Then some question 30 to somewhere around 30 to 40% you will find of moderate difficulty. That means those questions जो doable होते हैं but time taking. But the good thing is in JIPMAT paper we have enough time, right. तो हमारे पास टाइम है, तो इनको भी करने में देयर इज, आई थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बट ओनली 10 to 15% क्वेश्चंस विल बी देयर जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. 10 to 15% डिफिकल्ट मींस जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ऐसा पैटर्न कुछ होगा जो आपके माइंड में क्लिक नहीं करने वाला. तो ऐसे में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, स्किप कर देना क्वेश्चन को. आपको अगर कोई भी सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो जस्ट टेक 20 seconds. अगर 20 seconds में आपको कोई लॉजिक क्लिक कर जाता तो दैट इज गुड. अगर लॉजिक क्लिक नहीं करता देन लीव द क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट, बिकॉज वी हैव 100 क्वेश्चंस इन द पेपर. तो एक अकेले क्वेश्चन को स्किप करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज मुझे 100 out of 100 नहीं करना है, पॉसिबल भी नहीं है, राइट. सो लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो आई गेस 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. Out of 33, 5 to 6 questions from number series and alphabet series only. And this is tricky topic. This part, alphabet series, this part is easy. During classes भी मैंने आपको बताया why this part is easy, because we have limited set of patterns for alphabet series. But for numbers, we have infinite number of patterns. So उसको identify करना is a fight. ठीक है. So this part is tricky. आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको आइडिया कोई भी लॉजिक क्लिक करता है तो देन ट्राई टू अप्लाई, अदरवाइज स्किप द क्वेश्चन,
ठीक है. So you'll find 5 to 6 questions and जिसमें से I guess 1 or 2 question you'll find जो difficult होने वाले and remaining questions will be doable. ठीक है. Second topic, and this is important topic. ठीक है, very very important topic for JIPMAT from LRDI part. Second topic, coding and decoding. Again, this is very important topic for this JIPMAT part, right? LRDI, JIPMAT. JIP MAT में अगर LRDI में बात करें कोडिंग डिकोडिंग से you'll find 1 or 2 questions and tricky question, not very easy questions. ठीक है. Then we have cubes and cuboid. Definitely you'll find 1 or 2 questions, but this is again you'll find tricky question from this particular topic. Right. अगर आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा तो that was tricky question, right? So make sure अगर आपको लगता है कि let's say there is only one question, let's say cuboid से केवल एक क्वेश्चन आया and very time consuming, तो skip कर सकते हैं. But if there are 2 parts or 3 parts for one single question, तो make sure skip नहीं करना, उसको try करना, right? But अगर बहुत lengthy सा question and you have only one question on the basis of that given data, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्किप कर देते हैं because this is time taking. अगर मिनिमम यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस नहीं है ना मेरे पास क्यूब के साथ, तो मैं ट्राई करूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यूब को नहीं करने वाला. अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बच जाता, सिंस वी हैव 1 hour 50 minutes, सॉरी 2 hour 30 minutes और 150 minutes, राइट? सो अगर ये टाइम है, अगर ऐसा लगता है लास्ट में मेरे पास टाइम बच गया, तो इन क्वेश्चंस को तभी ट्राई करना है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सीक्वेंस. सो ये इजी होने वाला है, डुएबल होने वाला है, राइट? तो मेक श्योर सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है. लास्ट ईयर की बात करें तो आई गेस 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो. आपको सीक्वेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर देखने को मिले थे. ठीक है, तो मेक श्योर इसको बिल्कुल करना है. इजी टॉपिक एंड डुएबल आल्सो. सिंबल बेस्ड, लास्ट ईयर सिंबल बेस्ड भी था, इजी क्वेश्चन. सिंपल बॉड मास यूज करना, आई होप बॉड मास सबको पता है, राइट? सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होने वाला है. प्लस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड एंड सो ऑन. डेटा विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा. जस्ट चेंज देयर सिंबल्स, देन अप्लाई बॉड मास, you will be able to solve. So again, doable question, and you'll hardly find one question from this particular topic, not more than one. ठीक है. Then inequalities, again management exam की बात करें ना, तो this is important topic, inequalities, and doable, easy topic. So बिल्कुल भी skip नहीं करना, right? So this is again doable, easy topic, inequality, and you'll find 2 to 3 questions, not less than 2 questions. Minimum 2 questions you'll find from this particular topic, inequalities. Okay, next arrangement. So अगर मैं previous year की बात करूँ ना यहाँ पर arrangement में, तो JIPMAT में last 2 year में complex arrangement नहीं आया, right? अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया सिंपल अरेंजमेंट, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट. सो जो बहुत इजीली डुएबल होता है. ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट नहीं आ सकता, बट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट अगर आएगा भी तो वो डुएबल होने वाला है, इजी होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. बट जनरली अगर लास्ट 2 ईयर में देखें तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर JIPMAT में, JIP MAT में पूछा गया, वो क्वेश्चन थे सिंपल एंड सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मे बी दिस ईयर दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, बट वो डुएबल होगा, स्किप नहीं करना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बिकॉज यू हैव 1 hour 50 minutes, सो बहुत ज्यादा टाइम होता है. ठीक है. ओके, नाउ पजल्स, डेफिनेटली यू विल फाइंड सम पजल्स लाइक आई गेव यू एग्जांपल in the last session also, जब हम रोहतक की बात कर रहे थे, like आपको given होगा in a family there are 5 brothers, A, B, C, D, E. Height of A, or we can say A is elder to B, B is elder to C, but younger than D, and some data will be given. आपसे पूछ लेगा who is the eldest member in the family and so on. ऐसे बहुत सारे puzzles पे based questions पूछे जाते हैं, right? So this is again doable and important topic. ठीक है, puzzle. You'll find minimum 1 question from this particular topic, puzzle. Okay, next family tree. As I told you, important for all the exams. And again doable topic, बिल्कुल भी skip नहीं करना है, right? Okay, I told you कौन सा topic tricky हो सकता है, right? Number series tricky हो सकता है, cuboid tricky हो सकता है, and I guess और कोई भी इनमें से अभी तक topic नहीं जो बहुत tricky होगा, जिसको आपको skip करना पड़ेगा. So next one is direction. Again अगर directions की बात करें, डायरेक्शन सेंस में जो भी क्वेश्चन होगा डुएबल होगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा.
चांसेस हैं कि दे विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन थे आई गेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक डायरेक्शंस. सो डायरेक्शन से वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपसे पूछ सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एंड सेकंड वन इज आपको puzzle की फॉर्म में they will give you some data. On the basis of that particular data they will ask you 1 or 2 questions, right? So direction is again important topic and easy doable. ठीक है. Next, Venn diagram and syllogism. This is again very important topic and doable topic. Means from this particular topic last year I guess there were 3 questions, one from Venn diagram, 2 questions from syllogism. ठीक है. सो अगेन डुएबल टॉपिक. आई होप कि अभी इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू सी कि आपको रोहतक में भी सिलॉजिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे. सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो इन दिस ईयर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्लॉक एंड कैलेंडर. सो दिस इज द टॉपिक जो QA एंड LRDI दोनों जगह पूछा जाता है, राइट? एंड कैलेंडर के चांसेस ज्यादा है. आपके यहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इन JIP मैट. ठीक है. लास्ट ईयर भी आई गेस देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो मेक श्योर कैलेंडर भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. एंड आई टोल्ड यू कैलेंडर रिवाइज करने के लिए द बेस्ट वे, वी हैव सम वीडियोस इन आवर यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की जो भी प्लेलिस्ट है, वी हैव सम वीडियोस ऑफ कैलेंडर एंड क्लॉक. इफ यू वांट कि आपको रिवाइज करना है ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, राइट? ओके, देन डेटा सफिशिएंसी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे वहां पर डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड. एंड डेटा सफिशिएंसी इज समथिंग जो इजीली मैनेजेबल होता है, डुएबल होता है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज यहाँ पर हमें सबको सॉल्व नहीं करना, जस्ट वी नीड टू चेक वेदर द गिवन डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट. सो आई गेस ये भी डुएबल होने वाला है क्वेश्चन. ठीक है. Next, analogy से you can expect 1 question, not more than 1. ठीक है. This is again easy topic. Critical reasoning. So you can expect 2 to 3 questions from this particular topic, critical reasoning. Generally, management के एग्जाम में, JIP मैट या रोहतक के एग्जाम में critical reasoning से questions पूछे जाते हैं. As you see, रोहतक में भी questions थे, तो you can expect 2 to 3 questions in JIP मैट also from this particular topic, critical reasoning. So इसमें आपने वही क्वेश्चन करने जिसमें आप श्योर होंगे. अगर आपको लगता है कि कोई थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, तो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो. ठीक है. ओके, नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन. सो एज द नेम ऑफ द सेक्शन इज LRDI, सो डेफिनेटली DI तो होने वाला ही है, राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 सेट्स फ्रॉम DI, राइट? 1 to 2 सेट्स, नॉट 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 to 2 sets. ठीक है. एंड द इंपॉर्टेंट वन इज जो जनरली लास्ट 2 ईयर में मैं आपको बोलता हूँ, तो लास्ट 2 ईयर में जनरली जो DI में पूछा गया दैट इज पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट? सो पाई चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड और ग्राफ भी, ऐसा नहीं कि और को इग्नोर कर देना, बट लास्ट ईयर की अगर मैं लास्ट 2 ईयर की बात करूँ आपसे, लास्ट ईयर की अगर केवल पर्टिकुलरली बात करूँ, DI का जो क्वेश्चन था JIP मैट में जो लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बेसिक क्वेश्चन था. तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे हैंडआउट का लेवल, अगर आपने DI स्पेशल क्लासेस किए तो उसकी डिफिकल्टी तो उसके सामने बहुत ज्यादा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था. अगर आपने DI स्पेशल क्लासेस की हुई है एंड आप उन क्वेश्चंस को बहुत कंफर्टेबली कर लेते, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है एग्जाम में जो DI आएगा, राइट? ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, जिनमें से आपको मोर देन 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से मिलने वाले इन LRDI पार्ट, राइट? अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर DI से केवल एक ही क्वेश्चन था, इट वाज फ्रॉम पाई चार्ट. ठीक है. सो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 सेट्स, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक्स जो आई होप कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कॉमन है रोहतक एंड JIP मैट के. तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है. आपने रोहतक के लिए प्रिपरेशन करी होगी, तो आपकी आई होप कि आपकी प्रिपरेशन JIP मैट के लिए भी बहुत अच्छी हुई होगी. बट वहां पर जो पॉइंट आपको लगा था एग्जाम में जाके कि ये मिस हो गया या ये मिस हो गया, ये और कर लेना चाहिए था, नाउ यू हैव 2-3 days, so you can revise those particular topics, right? Okay, so sir, yes sir ji. Out of 33 questions in LRDI, please share with the students what would be a good number of attempt
and with what percentage of accuracy? Okay, so since we have total 150 minutes in this particular exam, so out of 33, good number of attempts is 28 plus, not less than this, right? Because we have time, right? Consider the time we have, because see, VA की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो. अगर आप 1 minute पर क्वेश्चन भी कंसिडर कर लोगे ना, let's say there are 34 questions, 34 minute भी अगर VA को दे दोगे, उसके बाद भी you have 116 minutes, right, for QA and LRDI. So I think this is pretty manageable कि आप 28 plus questions with the 90% accuracy आप कर सकते. Right. So this is good attempt, 28 plus with 90% accuracy. Great. Thank you, sir. Thank you so much for your insights. Now I would request Praveen sir to throw some light on the VA part of JIPMAT. Okay. So boys and girls, I'll not take much time of yours. घड़ी के 5 मिनट और इस चीज को हम खत्म करेंगे. I know that you have been waiting since morning. So when we talk about JIPMAT, बहुत सारी बात विनीत सर ने कही है, बहुत सारी बात गिरीश सर ने कही है. तो let me add on to certain point here. And one of the thing that जो चीजें मैं सोच रहा था, if let me share my pointer with you. Now here we are. I hope you can see my screen. So let me share the pointer. The one that I wanted to share here was, okay. Let me bring it again. Right. So कुछ चीजें I know that you people are prepared. ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. विनीत सर ने कहा कि अगर आप IIM इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो JIPMAT और रोहतक दोनों ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं, right? So it is something like that. So for sure I would agree with him, but there is one thing that we all would have to be agreeing with, and we all should be on a common platform, and that common platform that we are talking about is this one. We'll have to expect that there can be a sectional timing. Expect कीजिए कि हो सकती है सेक्शनल टाइमिंग, क्योंकि जब सेक्शनल कट ऑफ होता है तब एक सेक्शनल टाइमिंग हो तभी सेक्शनल कट ऑफ हो, ये एक रेशनैलिटी बनती है, करेक्ट? बिकॉज अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा और सेक्शनल कट ऑफ हो दे रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम एबरेशन समवेयर, क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट देना है और फिर देखना है कि इसकी क्या कट ऑफ आती है, इसकी क्या आती है. अदरवाइज यू कैन टॉगल बिटवीन द सेक्शंस. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट हियर इज एक्सपेक्ट सेक्शन टाइमिंग. हो सकता है जिस समय आप पेपर देने जाएं उस समय हो, तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शंस को आपने ढंग से पढ़ना है. डायरेक्शंस पढ़ना मैंडेटरी है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. दूसरी चीज, you will have to scan the paper or the section. अगर आपको पास अलाउड नहीं है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं, then in that case I would request you to please go with one section and scan the paper. Scanning is of utmost variety. When I say scanning, now I am not saying that you are supposed to segregate that. वो तो एक अलग बात होती है, but इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेपर स्कैनिंग इसलिए जरूरी है because this paper would be race against time. Now why am I saying race against time is for a very basic reason. अगर हम देखेंगे JIPMAT का पेपर, जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं that it would be जैसे विनीत सर ने कहा था कि सबसे ऊपर इंदौर आता है, फिर रोहतक आता है, फिर JIPMAT आता है. मगर इस बार जो JIPMAT का पेपर है वो अलग टेंजेंट पे हो सकता है. There could be some questions which might bring this paper to the IIM रोहतक level. तो अगर ऐसा होता है तो ये पूरा गेम रेस अगेंस्ट टाइम होगा. तो आपको मैक्सिमम छोटे छोटे क्वेश्चंस ढूंढने होंगे और करने होंगे. अगेन इसमें बहुत ज्यादा नॉन डुएबल क्वेश्चंस नहीं होंगे. आई रिपीट, इसमें बहुत ज्यादा नॉन डुएबल क्वेश्चंस नहीं होंगे, मगर एक चीज पक्की होगी, यू माइट हैव कंफ्यूजिंग आंसर्स. आई रिपीट, टाइम कंज्यूमिंग आंसर्स नहीं होंगे, बहुत क्लोज ऑप्शन चॉइसेस होंगे, जिसकी वजह से जो आपका पेपर है विच इज JIPMAT पेपर, ये 2021 से बेटर पेपर होगा. ओके, वन थिंग आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पर्सनली JIPMAT के अथॉरिटी से हमने बात किया था, जहां पे हमने उनसे साफ साफ ये चीज पूछी थी कि बताइए कि इस बार पेपर कैसा होने वाला है. और उधर अथॉरिटीज ने साफ साफ एक बात कही थी कि इस बार इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट पेपर देन व्हाट इट वाज अर्लियर. सो ये बात पक्की थी सबको. विनीत सर ने भी कहा, उन लोगों ने भी कहा, सब लोग ये मान के चल रहे हैं क्योंकि वो पहली बार था 2021, इसीलिए थोड़ी लीनियंसी आपके साथ दी गई. बट इन 2022 things are
गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, बट देयर वुड बी सम 15 to 20% चेंज, कुछ चेंज इसमें एक्सपेक्ट करना बनता है। अनदर पॉइंटर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाउ इट इज गोइंग टू बी द रेस अगेंस्ट टाइम। नाउ इफ इट इज गोइंग टू बी द रेस अगेंस्ट टाइम एंड आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस दैट वी हैव, आई वुड से कि इसमें 27 क्वेश्चंस तो हर कोई करेंगे ही, जिसकी एक्यूरेसी लेवल 80% होगी। बट थोड़ा सा और मैं आगे जाऊंगा तो 2 से 3 क्वेश्चंस और मैं इसके अंदर जोड़ूंगा जिसकी 100% एक्यूरेसी होगी। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से बात करते हैं, इस सब को अगर मैं मिटा दूं तो मैं कहता हूं कि आप 29 क्वेश्चंस तो करेंगे ही विद ओवर 85% प्लस एक्यूरेसी के साथ। तो तब जाके बात बनती है, क्योंकि ये 29 क्वेश्चन भी करना, ढूंढना टाइम हो सकता है। मैंने कहा कि आप एक्सपेक्ट करिए कि सेक्शनल टाइमिंग होगा। अगर सेक्शनल टाइमिंग हुआ तो ये 29 क्वेश्चंस करना भी अपने आप में एक बॉन्डेज बन जाएगा। आपको पता होगा कि मेरे पास टाइमर जा रहा है, मुझे इसी टाइम के अंदर करना है। तो हमें इस तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी करके जानी पड़ेगी। ये भी एक स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि अगर सेक्शनल हुआ तो मुझे क्या करना है। नहीं है तो आप ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आपका फ्री प्ले है, कभी यहाँ आइए कभी वहां जाइए। इजी क्वेश्चन पहले सारे में से कीजिए, फिर उसके बाद एक मॉडरेट वेराइटी ले लीजिए, उसके बाद मॉडरेट प्लस वेराइटी। दिस इज व्हाट यू कैन बिगिन देयर। बात करते हैं टॉपिक्स की। अभी तक जहां तक बात थी, टॉपिक्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, छोटी छोटी सी आपकी चीजें थी, कुछ बहुत ही निग्लेक्टेड सी चीजें आती थी। Okay, now let me not use this word neglected, but I would call it, but there were certain topics which were not in use or prevalent. वो टॉपिक्स भी इसके अंदर आते रहे, जैसे कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनका कोई अब रेफरेंस नहीं है। ध्यान रखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी पेपर अच्छाई की तरफ जा रहा है, अच्छा हो रहा है, वो इससे मतलब नहीं रखता कि आपकी ग्रामर कैसी है, वो ये मतलब रखता है कि आपको समझ में क्या आ रहा है। उसको ग्रामर से खास मतलब नहीं है। अगर ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े से लेफ्ट राइट होते भी है, दैट्स ओके, बट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड, डू यू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन, डू यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द लॉजिकल corollary that you can derive out of that, that is what more important than है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर को थोड़ा ये इवॉल्व होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस बार कोई बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं होगा, अगर मैक्सिमम इवॉल्व हुआ तो 20% इवॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ 3 to 6 अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस और बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये 2 की जगह ये 6 हो जाए, एंड व्हाट आई बिलीव इज ये क्वेश्चन कट के हो सकता है कि यहाँ पे ऐड हो जाए। सो दिस इज व्हाट दैट कैन हैपन बिकॉज दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ 2021. So what I'm predicting for a 2022, the things would obviously get better off, and there could be another element that might come down as a critical reasoning as a part of English as well, right? जहाँ पे assumption questions हो सकते हैं, strengthening, weakening हो सकता है. These are the kind of things that they can come in there. I'm sure ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है। Now the next question would be, सर कहाँ से शुरू करेंगे? Obviously we're going to start with the लड्डू questions. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ से शुरू करना है, but at the end of the day questions सारे करने होंगे। सारे का मतलब है out of 34 questions I'm saying 28 questions, उसके बाद 29, 30, 31 भी जाते हैं। That's again your choice. How would you be going things? There were students last time who had done 30-31 questions as well. इस बार भी होंगे। प्रिपेयर्डनेस बढ़ गई है, टाइम मिला है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने का, सबके पास टाइम है, सबने प्रिपेयर किया है, आपने भी प्रिपेयर किया है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस तरह से चीज को देखेंगे, बट 28 क्वेश्चंस के आसपास रिवॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पेपर लास्ट ईयर वाला है, अगर लास्ट ईयर से इजी आता है तो दिस वुड डेफिनेटली गेट इनटू 30 और 31 एज वेल। अगर कुछ एबिरेशन आता है तो 28 को अपना एक बेंचमार्क आपको मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर स्टूडेंट्स नहीं थे, इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, प्रिपेयर्डनेस भी है, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं, तो इस सबको मान के चलूंगा 28 से नीचे नहीं हो सकता। This is how we'll have to get into. So Vinit sir, this was a little part from my side. I'm sure I was in a position to help students out with this. Sure, sir. Thank you so much. So to summarize the entire discussion, I need to just, may I share with this? Okay. So to summarize the entire discussion, let me just make the summary and section wise. So अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रवीण सर ने कहा कि एग्जाम देने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, प्लीज रीड इट केयरफुली, बिकॉज अगर इंटरव्यू के दौरान इफ आई एम JIPMAT के जो दोनों कॉलेजेस के जो सीनियर जो स्कॉलर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा कि देयर कुड बी अ स्लाइट डिफरेंस दिस ईयर
So that difference will be there in the directions of the question paper. So please read the directions carefully और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि सेक्शनल टाइम लिमिट है या सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. लास्ट ईयर इट वाज नॉट देयर, बट इट एक्चुअली मेक सेंस कि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ डाल दिया है तो सेक्शनल टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, just like which is the case in IIM Indore, right? So first is QA. As you know, you have enough time and you have 150 minutes, 100 questions. समय काफी है and questions are very basic in nature. So I expect you to at least attempt 28 to 30 questions, and that too with 90% accuracy, and that actually brings it down to around 26. So 26 questions आपके बिल्कुल सही हुए. Now basically 26 4 this is somewhere around 104, right? And इसमें से आपके बेसिकली मान लीजिए आपने इसमें 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, सपोज करो अपने 28 to 23 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो this -3 that brings me to 101. So 101 तो आपका होना ही चाहिए in this particular section out of 132. Second, when it comes to LRDI, logical reasoning and data interpretation, जैसे कि गिरीश सर ने कहा कि 29 अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए with 90% accuracy. So let me bring it down to again 26, और फिर से आपके 3 यहाँ पे अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो 26 into 4 is again 104, and this brings to 101 out of 132. And third part is verbal ability, and as Praveen sir says that 26 attempts तो होने चाहिए with at least 85% accuracy, right? 28 attempts होने चाहिए. क्वेश्चन अगर आसान आता है तो सर ने बताया कि 31 32 तक भी आप जा सकते हैं, but 28 is the benchmark. अगर मैं इसकी बात करूं, so it is approximately around 25 questions, right? So 25 questions is around you can see 100 marks, so that brings to 100 marks. और इसमें मैं मानता हूं कि आपने 100 मार्क्स में से अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए -3, so that brings me to 97, right? So 101 it is 202 plus 97, which is 299. So out of 400 marks, if the students are closer to 300, or let me write 295 plus, this is the marks you're getting, suppose. So Praveen sir, Girish sir, I would like to take suggestions from you. Is that a safe marks, provided a student has done well in class 10th and 12th in the boards? Is that a safe marks for IIM Jammu? Praveen sir. Absolutely sir, absolutely. What we need to understand here is ये एक safe score है और ये एक सेफ स्कोर है. अगेन मैं आपकी बात को सर दोबारा से रिटेट करूंगा, ये सेफ स्कोर है, मगर ये कोई फुल फ्लेजेड स्कोर नहीं है कि जिसके बेसिस में कहूं कि मेरा हो ही गया है, इंटरव्यू में मेरे नॉर्मल 50% के करीब आ जाएंगे तो उस हिसाब से मैं लगा के आगे चल लूं. दिस इज नॉट द केस, बट येस दिस इज एन एक्सट्रीमली सेफ कोर्स. सेफ के बाद आपको जितना मैक्सिमाइज जिस भी सेक्शन में से आप करना चाहते हैं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करता हूं तो लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरीके से था. से फॉर एग्जांपल जब हमने क्वांट्स की बात की थी तो तभी 28 के करीब क्वेश्चंस थे. ऐसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग और ऐसी वर्बल एबिलिटी था. मैं मान के चल रहा हूं इस बार पेपर टफ है, बट माय प्रिपेयर्डनेस अच्छी है, तब भी नंबर उतने ही रहेंगे, नंबर में गिरावट नहीं आ सकती है. सो नंबर उतने ही रहने हैं. सो आई थिंक 295 इज अ ब्यूटीफुल नंबर, द वन दैट यू टॉकिंग अबाउट. ये बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा नंबर है. दैट्स व्हाट आई वुड कॉल इट. Yes sir. So Girish sir, your comments on this? Yes, sir. 295, that means approx 75%. That is a good score. Approximately, 75, 3/4 of the paper, 3/4 of the marks they're getting. Yes. So, dear students, the only suggestion to you is that since there is no interview in this, और एक बोध गया में तो 10th 12th का भी कोई वेटेज नहीं है, entire selection आपके written test पे होना है. So just try and maximize your marks. बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, मार्क्स आपके कम थे, you make it make up in the interview, but here it is not the case. Your entire selection is based on basis of your written test so far as Bodh Gaya is concerned. So just try and if you are 295 plus is a beautiful score as Praveen sir and Girish sir says, but मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 400 में 300 प्लस पे हो तो आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हो कि हाँ मेरा तो चांस है, मेरा तो चांस स्ट्रांग बनता है इन 2 कॉलेजेस में. और जहां तक बात है जम्मू की, अगर आप 295 प्लस पे बैठे हुए हो JIP मैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, प्लस आपने 10th में और 12th के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया है, यू हैव वेरी ब्राइट चांस.
and uske upar above that, if you are a girl, you have all the more chance of getting into those colleges, right? So 295 plus is the score, which we are actually saying that it's a beautiful score. It could be a safe score, but just aim for 300 plus, right? Aim for 300 plus. That is suggestion from our side, right? So this was all from our side. Thank you so much, Praveen sir. Thank you so much, Girish sir, for getting and please being a part of this session. And thank you so much for throwing some light, on this in this aspect of JIPMAT. Thank you so much. This was all from our side. I hope this session was of some value to you. अगर आपको ये पसंद आया, आपको valuable लगा, तो please like this video, share this video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the recent notification. We are going to conduct many more sessions on strategy of symbiosis and different entrance examinations. So stay tuned with us. And in order to get all the updates, please press on the notification. Press like it and press on the notification button as well, right? So thank you so much. All the very best to you. Swasth rahiye, mast rahiye, tandurust rahiye, stay safe, stay happy. God bless you, and bye. And thanks to all the panelists. Thank you, Praveen sir. Thank you, Girish sir. Good night. All the best to all the students. Thank you, everybody. Bye-bye.